أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالك يا أختي؟ انا بخیر الحمد للہ۔ الحمدللہ آج میں نے آپ سے تھوڑا سا بدل کے پوچھا، ٹھیک ہے؟ آج میں نے آپ سے پوچھا کیفا حالوکی جی یا اختی، جی ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہم کا کہتے ہیں نا، ایسے ہم کہتے ہیں ہو، ہم، کا۔ تو جب ہم مؤنث سے کریں گے پھر ہم کہیں گے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح۔ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا جب مؤنث کی طرف آئیں گے پھر ٹیبل کو مکمل کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھیں گے، اور اس میں اخت پلس یا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہمیں جو بول چال کے جملے ہیں ان پر بھی جتنی جتنی ہم گرامر سیکھتے جائیں گے اپلائی کرنا آتی جائے گی انشاءاللہ، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیسے بلڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ جتنے بھی ہم عربی کے لفظ اسپوکن میں بولتے ہیں یا پھر ہم احادیث میں جو الفاظ دیکھتے ہیں، جن الفاظ کے معنی نہیں آتے ہمارے پاس الحمدللہ سے سوشل میڈیا کا اتنا وسیع پیمانہ ہے کہ ہم سرچ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، یا ٹیچر سے پوچھ لیں ڈکشنریز میں سے، تو اس میں سے یہ کہ مدد سے ہم کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سبق نمبر 18 اے اور بی، اور آج ہم کور کریں گے کچھ احادیث اور قرآن کی آیات کے کچھ ٹکڑے۔ تو کورس ہمارا ہے آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس اول ہے اور اسے ہم پیار سے QC1 کہتے ہیں، اور QC1 میں ہم نماز کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم آج صرف آیات کے ٹکڑے سیکھیں گے۔ انشاءاللہ جب ہم QC2 شروع کریں گے تو QC2 میں ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ مصحف سے شروع کر لیں گے، پہلے سورہ فاتحہ کو QC2 والے انداز میں سیکھیں گے، اس کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، قرآن آسان ہے، آج ہم نے اس کو الحمدللہ سے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ بھی سیکھ لینا، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے۔ اچھا جی، یہ والی ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے، اسی طرح سے نیت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اسے دیکھ لیں گے۔ گرامر میں آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، میں نے کہا تھا کہ فعل امر کے بعد کچھ ہم نئے اشارے سیکھیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، عابد۔ تو یہ جتنے اکثر نام رکھے جاتے ہیں نا، شاہد، ٹھیک ہے، خالد، ماجد، ساجد، یہ سارا اشارہ کام کرنے والے کو شو کرے گا۔ تو ہم اپنے افعال کے ساتھ آج انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم نے 14 نئے الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن مجید میں 898 بار آئے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں بار بار فرمایا ہے، تقریباً سمجھیے گا کہ 4 بار آپ کو یہ آیت ملے گی، سورہ القمر کھول کے دیکھیے گا بھی، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ کو ملے گا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال پوچھا جا رہا ہے، تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ یہ آپ کو آیات کے نمبر بھی بتا دیے، ٹھیک ہے؟ ان آیات میں دیکھیے گا، یہ بار 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 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جہاں پر آپ یہ بلو ٹک دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم پڑھ کے آ گئے ہیں، وا کا معنی، اور ہم نے کہا تھا کہ جب حروف کے ساتھ آ جائے، حروف کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اب यहाँ पर हमारा अलबत्ता वाला माना आ जाएगा। और ये जो ला होता है ना, ये ताकीद के लिए होता है, ठीक है, जी। एम्फेसिस के लिए। और कद, कद का माना ये है। और कद खास तौर पर जब हम इंशाल्लाह अगले लेवल्स में बढ़ते जाएंगे ना, हमने अपना जब खास तौर पे अपना नहव वाला पार्ट शुरू करना है, हमें पता चलता है कि कद जब आ जाए माजी के साथ, ये है फेल। इस तरह के फेल इंशाल्लाह हमने करने हैं QC3 में। लेकिन इसमें देखिए, तर्जुमे से देखा करें कि इसमें ना काम किया जा रहा, हमने आसान किया। जैसे अगर मैं कहूँ यस्सरा, उसने आसान किया, यस्सरू, उन सब ने आसान किया, यस्सरता, आपने आसान किया, यस्सर तुम, मैंने आसान किया, यस्सर तुम, आप सब ने आसान किया, यस्सर ना, हम सब ने आसान किया। तो हम सब वाला यहाँ पर माना नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में समझिए, जैसे रॉयल्टी या कोई किंगडम को शो करने के लिए, या जैसे कोई नवाब और बादशाह वगैरह अपने बारे में जब बात करते तो हम करके बात करते ना, होता तो वो एक ही है, लेकिन वो अपने बारे में अदब के लिए लोगों के, या रोब के लिए अपने लिए जो सीगा इस्तेमाल करता है, वो हम वाला इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह खुद के लिए ये इस तरह से सीगा जमा वाला भी यूज किया, ठीक है। तो कद जब आ जाए माजी पर, तो अब ये है कि ये बात यकीनी हो गई। अब इसमें रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं है शक व शुबा की। और अलबत्ता तहकीक, देखिए, एक अलबत्ता वाली भी ताकीद आ गई और ये कद वाली भी ताकीद आ गई। यानी कि इतना एम्फेसिस डाल डाल कर, ताकीदें डाल डाल कर अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमने आसान किया, ठीक है। यस सर ना, ये आपको तोड़ के दिखाया यहाँ पर कि आपको जरा समझ आ जाए कि ना जो है वो हमारे वाला है। लेकिन इसके हमने टुकड़े नहीं करने, जैसे हम कहते हैं ना, फालना के टुकड़े नहीं करने, फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना, इसके टुकड़े नहीं करने, इस तरह यस सर ना के भी टुकड़े नहीं करने। बस ये हमें समझने के लिए कि जो ना है ये वही अपनी तरफ वाला ना है, फालना वाला ना है। यस्सर का मान, यानी कि ये माना भी कुछ हमें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जैसे हम शुरू में एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, इसको भी आज थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं रब्बी यस्सिर, और हम कहते हैं वला तुअस्सिर, ठीक है। और तो उसमें आइन आ जाती है ना, आइन, जी। ठीक है। रब्बी यस्सिर। अब ये थोड़ी थोड़ी ये जो तब्दीली है हरकत वगैरह की, इसके बारे में इंशाल्लाह हमने अगले अगले क्यूसीज में सीख लेना, जब हम ये वाला टेबल सीखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ जो बात सीखने लगे हैं वो ये है कि युस्र बोल कर देखें, बोलना भी आसान है युस्र, लेकिन उसर, ये बोलने में भी मुश्किल है, इसका माना भी मुश्किल है, ठीक है। ये इसको इस तरह से हम याद कर लेंगे कि युस्र बोलने में भी आसान है, इसका माना भी आसान है, उसर बोलने में मुश्किल है और इसका माना भी मुश्किल ही है, ठीक है। युस्र आसानी, और यसरना हमने आसान किए। तो मैंने आपको ऐसी टेबल का माजी वाली साइड पढ़ के भी बता दी कि ये इस तरह से हम इसे देखा करेंगे। इसके बाद है अल कुरआना। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखें कि ये हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर दोमा होती, ठीक है, पेश होती। लेकिन ये सब्जेक्ट बना, हमने आसान किया, किस चीज को आसान किया, कुरान को। और ये जो इस टाइप की तर्जमे की हेल्प से हमें पता चल जाता, हम कहते हैं ने वाला जो तर्जमा होता है ना, ये करने वाले को जाहिर करता है, और ये जो को वाला तर्जमा जिसके ऊपर असर पड़ता है। इस चीज को हम ऐसे भी सीखा करेंगे कि जैसे हम कहें दौराबा हामिदुन। अब ये है हामिद, करने वाला, इसने काम किया ना, तो ये हामिद ने मारा। लेकिन अगर लिखा जाए दौराबा हामिदन, तो ये बन जाता है उसने मारा, ठीक है, उसने मारा हामिद को, ठीक है। और अगर हम इसमें मजीद थोड़ा सा इजाफा करें, दौराबा हामिदुन जैदन,
ठीक है। अब ये क्या सिस्टर, आप थोड़ा सा इसका तर्जुमा करके देख सकती हैं कि अब तर्जुमा कैसे बनेगा, ये लास्ट वाले का। इसका तो जी गौरव कोशिश। है। हाँ, हामिद। हामिदुन। अब हामिदुन को आप इसका सब्जेक्ट फाइल बना लें। कोशिश कीजिए। उसने मारा की बजाय अब हमें पता है किसने मारा है, ये कौन है मारने वाला। थोड़ी सी हामिद कोशिश। ने मारा हाँ, हामिद जैद ने। को। हामिद ने मारा जैद को। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको छोटी सी एक टिप, ये हम सिर्फ इसको लर्निंग के लिए, समझने के लिए बताते हैं। हम कहते हैं कि ये जो होता है ना, पेश जो होता है, ये ऐसे इसको गोल सा समझ ले कि ये मारने वाला है, ठीक है। और ये जो जैद है ना, ये मार खा खा के फ्लैट हो गया है इस जैद। ठीक है, अब इसके ऊपर जो फतह आ गई, फतह सीधी सी होती है। बस इस टिप को इस तरह याद कर लें कि जो जो गोल है ना, ये मारने वाला है। ठीक है, ये मार खा खा के जो जी। जैद है ना, बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये आ हम्म। गई हमारी दोम्मा पेश, और ये हमारी जबर या फतहा। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको इतनी हेल्प करेगी कुरान के तर्जमे को समझने में कि आपको याद से पता चल जाएगा। जैसे खास तौर पर एक आयत है, कौतला दाऊद, दाऊद यानी कि कत्ल किया दाऊद ने जालूता, जालूत को। ये जब इस तरह की सिंपल सिंपल वाली छोटी छोटी आयत देखेंगे ना, जिस पर ये अ, फतहा और दुम्मा से हमें काम करने वाले का, और जिस पर असर पड़ा, उसकी समझ आने लग जाती है। बहुत डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों से, ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, इनसे पता चलना शुरू हो जाता है। ये कोर्स रमजान में किया ना, तो बड़ी तेजी से हमने किया। इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स को हम ईद के बाद दोबारा से बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। एक वीक में 2 क्लासें करेंगे, और मुकम्मल इसका हम जब अपना ग्रुप एक्टिव करेंगे, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह। ये जो हमें अभी आपके सामने लिखा, दौराबा हामिदुन, हामिद ने मारा दौराबा हामिदन, उसने मारा हामिद को। इसके बाद दौराबा हामिदुन जईदन, जैसे आपने अभी थोड़ी सी मेरी हेल्प ली और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। ये आपको मेरी हेल्प के बगैर इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता वाला चला अल ये वाला कुरान। कंफ्यूजन ना मुझे, ये जो आपने बताया है ना वो हाबील काबील वाला, ये वाला कंफ्यूजन मुझे यही रहता था, पता नहीं किसने किसको मारा। ये हाँ, समझ ही नहीं आता थी। अब आपको पता जी। चल गया, ये जिसके पेश ऊपर पेश जबर होगी वाली ना। हम बता दिया था। हाँ, जिसके ऊपर जी। पेश होगी वो आप समझ लें कि वो मारने वाला है। ठीक है। मारने वाला ठीक है, है। ठीक है। डिफॉल्ट हालत है वो फिर जरा अपने एक रोब में है। ठीक है। अब हर जैसे अब ये ना, यहाँ पर हमें ये मारने वाला नजर नहीं आ रहा, तो फौरन हम अपने फेल पे चले जाएंगे। ठीक है, हम कहेंगे दोराबा उसने मारा। ठीक है, अगर हमें ना भी अब नजर आए ना कोई पेश वाला, लेकिन हमें बदली हुई शक्ल वाला नजर आ रहा, इंशाल्लाह। मैं यही आपको बताती, ये जब हम अपना कोर्स अपने टीम व ग्रुप के साथ एक्टिव करके उसे करेंगे, तो आप एक नए अंदाज में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है। ये रमज़ान में सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये था कि रमज़ान में हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, बाद में थोड़ा सा ये है कि चले एक दिन में टाइम नहीं मिला तो हम पूरे वीक में इसको कवर किया करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह, बाकी और लोग भी आएंगे आपके साथ, जो अभी वीडियो से कवर करते हैं वो भी साथ आएंगे। इंशाल्लाह कुछ और लोग भी शामिल हो जाएंगे। फिर हम बहुत अच्छे तरीके से वीकली एक क्लास कर लिया करेंगे, और इसको फिर पूरा हफ्ता हम इस तरह से लेके चला करेंगे, आपको असाइनमेंट्स दिया करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी समझ आएगी। QC1 इंशाल्लाह। बेस है, आपने ये नहीं कहना कि मेरा ये टाइम वेस्ट हो गया। QC1 बेस है। आपका QC1 बेहतर होगा तो इंशाल्लाह कुरान का फहम, जहां तक आप जाएं, आप QC7 तक ये सीखें, या आप तफसीर के कोर्स करें, या आप तदब्बर के कोर्स करें, या आप तजवीद के कोर्स करें, और इसके साथ साथ अगर आप हिफ्स करें, इंशाल्लाह ये हर जगह आपको QC1 काम आएगा। हमने एक कोर्स किया था तजवीद का, तो उसमें हमने 30वां पारा हिफ्स करना था। तो हिफ्स में भी QC इतना काम आता है कि आपको पता चल जाता है कि अगर आपको पढ़ते पढ़ते हिफ्स करते वक्त जहन से निकल जाए, जैसे इंसाना है कि इंसान हुए, आप फटाफट जाते हैं उसके फेल पे कि इसके पीछे फेल कौन सा यूज हुआ है, फौरन क्लिक करेगा कि अच्छा ये यहाँ पर हमने क्या चीज लगानी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होता है इसका। QC1 पे मेहनत कर लें, इंशाल्लाह ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, अल कुराना, हम कुरान मजीद, कुरान शरीफ जिसे कहते हैं, मुसहफ कहते हैं। तो ये क्या है, ये इसका अपना एक बजाते खुद माना भी है। वो क्या है?
بہت پڑھا جانے والا، اس کے نام میں بھی معجزہ ہے کہ القرآن بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یاد کرنا، حفظ کرنا، ان سب کے علاوہ قرآن بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ غیر مسلم بھی اس بات سے پوری طرح متفق ہو گئے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانکا، یہ اس کا 11واں جو ایڈیشن ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم، جیسے میں اپنی بھی بات کروں، آج سے کچھ سال پہلے جب مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اس میں ترجمے یا گرامر کسی چیز کو ہم نے سیکھا نہیں تھا، تو بڑی سپیڈ کے ساتھ، میں خود اپنی بات کرتی ہوں، بہت سپیڈ کے ساتھ پڑھنا، اور ایسے ہوتا تھا 15 منٹ میں میں نے پڑھ لیا، یہ پارہ ختم کر لیا، 10 منٹ میں میں نے سورہ کہف پڑھ لی۔ مجھے تو صرف سورہ ملک پڑھتے ہوئے 5 منٹ لگتے ہیں۔ محفلیں وغیرہ جب ہم کسی کے لیے قرآن خوانی کرتے، اچھا یہ ایک سپارہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، تو اس طرح سے بھی قرآن مجید ہم نے بہت پڑھا ہے۔ تو پڑھا جانے والا بہت پڑھتے ہیں، اگر کسی کو نہیں بھی اس کا معنی آتا ہے تب بھی قرآن پاک بہت پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کا ثواب رہے گا۔ جو آپ نے ایسے پڑھا ہے نا سمجھے بغیر، وہ ضائع نہیں ہوگا، پڑھنے کا الگ سے ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ جب سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لی ذکر، یہ جو ذکر لکھا ہوا ہے نا، زکارہ کے ٹیبل میں، انشاءاللہ آج کے ہی لیسن میں ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ذکر کہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب زکارہ اور اس کے بعد یذکرو، اذکر، یہاں تک ہم سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے کام کرنے والا جس پر اثر پڑا، اور یہ جو کام کا نام ہے، آج ہم نے یہ چیزیں سیکھ لینی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ دیکھیے گا، قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو لی نظر آئے، اس کے ساتھ پلس ہو کر الف لام والا کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی اسم ہو، تو یہ والا حمزۃ الوصل لکھنے اور پڑھنے دونوں میں حذف کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو الف لام ہے، جوڑ کے لکھیں گے تو یہ للذکر، للناس، للمتقین، للہ، اس طرح سے بن جاتا ہے کہ الف حمزۃ الوصل، یہ جو ہے اس کو الف نہیں کہنا، حمزۃ الوصل لکھنے اور پڑھنے دونوں میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی لی ہے جو ہم نے لاہو والا پورا ٹیبل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو للذکر، للہ ہم نے کیا تھا الحمدللہ میں، ذکر کے لیے، ٹھیک ہے؟ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آسان کس طرح ہے ذکر کے لیے، یعنی کہ حفظ کرنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو ماشاء اللہ سے حفظ کر لیتے ہیں نا، بہت چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کا کوئی بچہ ہے حفظ کر لیتا ہے، ہم، چلیں 11 سال کا بچہ، بڑے بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں ذرا، جیسے ہم، جیسے اب ہماری عمر ہے، اس عمر میں بھی ہم کوشش کریں تو یہ تب بھی شروع کر لیں گے نا، تو یہ چاہے ٹائم زیادہ لگے لیکن یہ یاد ہو جائے گا۔ سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس میں تو کسی طرح کا بھی ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو آگے ہے نا لکھا ہوا، فتوے دینے کے لیے، احکام نکالنے کے لیے، اس کے لیے پھر مزید محنت کرنا پڑے گی۔ جیسے ہمارے ائمہ کرام ہیں، علماء کرام، انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے اپنی عمریں لگائی ہیں۔ اب یہ کیا کر سکتے ہیں، جیسے جو ہوتے ہیں مفتی ہوتے ہیں، فتوے دیتے ہیں نا، تو یہ قرآن مجید سے فتوے وغیرہ نکالنا، احکام نکالنا، اس کے لیے مزید محنت کریں گے تو یہ بھی ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اچھا جی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 20 گھنٹوں میں، اور میں کہتی ہوں 20 گھنٹوں کو تھوڑا بڑھا لیا کریں، کیونکہ 1 گھنٹے میں صرف آپ کی جو سلائیڈ پر لکھی وہی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، جو تھوڑے سے 15 منٹ 20 منٹ میں کہتی ہوں اتنی زیادہ دیا کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنا ٹائم بھی 1.5 گھنٹے کا رکھیں گے، تاکہ کبھی کلاس 1.25 گھنٹے میں ختم ہو جائے، کبھی 1.5 گھنٹے میں۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں نماز کو سمجھ کر، اور تھوڑی سی ہم نے ہیلپ لی گرامر کی، تو انشاءاللہ 40,000 بار آنے والے الفاظ الحمدللہ سے سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے قرآن، سبحان اللہ۔ اچھا جی، عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، یعنی اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد از جلد پورا قرآن سیکھیں گے، کسی نے بھی گیو اپ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے QC 1 کے بعد QC 2 کرنا، اور دیکھیے گا QC 2 میں ایک الگ ہی آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا۔
और इतनी खुशी होती है, मैं अपना आपको बताऊं, जब मैंने QC2 शुरू किया था तो जो आयत मुझे समझ आती थी, आगे कहीं मैं पढ़ रही हूँ, वो एक जो हमारा लेसन सूरह बकरा का है, अगर मैं कहीं आगे से पढ़ रही, वो वाले अल्फाज जब आते हैं, अच्छा जल्दी से खोल के देखें ये तर्जुमा, ये मुझे मेरे जहन में आ रहा है यही है, तब भी बड़ी खुशी होती है। तर्जुमा वो ना निकले, फौरन आप सवाल करते हैं, टीचर से पूछते हैं आपने हमें ये पढ़ाया था, यहाँ ये तर्जुमा नजर आ रहा है। मैं कहती हूँ इतनी फसाहत और बलागत है अरबी जुबान में कि आपको फिर जब नया तर्जुमा समझ आएगा तो नई चीजें समझ आने लग जाती हैं। अच्छा जी, अगर कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए कि ये अल्लाह के इस ऐलान के खिलाफ बात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। आसान है, लेकिन 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 ये खुद ब खुद नहीं आ जाएगा, कुछ वक्त और मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि हम बैठे कि ये मोजजा ये भी हमारे साथ हो जाए, अल्लाह चाहे तो हो भी सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और शऊर से भी नवाजा है, तो कुछ थोड़ा सा वक्त निकाल लें, और जितना वक्त आप कुरान के लिए निकालेंगे अल्लाह ताला आपके टाइम में बरकत डाल देगा। इसको आजमा के देखिएगा, जो चल कर आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। चलना शुरू कीजिए इंशाल्लाह। जब हम चलना शुरू करते हैं ना, और शुरू करना ही काम होता है, जिस काम को शुरू किया जाए वो इंशाल्लाह जरूर अपने इख्तिताम को या अपनी कंप्लीशन की तरफ जरूर बिल जरूर पहुंचता है। तो कोशिश आज से जारी की हमने, आज से कोशिश शुरू की, इंशाअल्लाह ताला हमें जरूर दीन का कुरान का फहम समझने में आसानी करेगा। अच्छा जी, खुद के लिए आसान है, कैसे आसान है, हम याद कर सकते हैं आसानी से, जो सिंपल सिंपल तर्जमे उसको भी हम पढ़ के बहुत सारे अहकामात को समझ लेते हैं। दूसरों को नसीहत करने के लिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले कुरान को खुद समझना है, फिर जो दलाइल वगैरह अपने टीचर से या हमने तफसीर की किताबों से देखने हैं, तो उससे ये होगा कि हम दूसरों को भी आसान आसान चीजें बता सकते हैं। क्योंकि बहुत ये हमें भी मना किया जाता है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे, ऐसा सवाल जो अब जैसे मेरी समझ से बाहर है, या ये है कि मुझे उसके बारे में थोड़ा इल्म है पूरा इल्म नहीं है, मैंने आपको उसका आंसर नहीं करना, बल्कि हम आपके सवाल डायरेक्ट अपने टीचर्स तक पहुंचाते हैं, तो फिर वो उसके बाद आंसर करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदाजे बयां और इसकी दलीलें सब याद हो जाए। इसको सरसरी सरसरी सा नहीं लेना। ठीक है, जैसे अब आप समझ रहे हैं फ़अला समझा, ठीक है, तो इसको पूरी तरह समझ लें कि उसने किया, ये माजी है, इसमें 3 हरूफ है फ़ाइन लाम, और ये फेल है, इसमें जमाना पाया जा रहा है, फ़अला में माजी है। इस तरह से एक एक लफ्ज की डिटेल और उसकी शरह इंशाल्लाह आपको दूसरों को बताना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए नसीहत के लिए इसे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, जब हम अब कोई भी आयत मुबारका देखेंगे, छोटी हो या बड़ी, ठीक है, अब वैसे भी जब कुरान पढ़े ना, आजकल रमजान में जरा ज्यादा पढ़ा जाता है कुरान, कुरान पढ़ें, चाहे आप उसकी 3 आयत पढ़ लें, फिर आयत पढ़ के आप देखें इसका तर्जुमा क्या है, ये जो सब कुछ लिखा है, इसके हिसाब से मैं अपने लिए क्या दुआ कर सकती हूँ, मैं एहतसाब क्या कर सकती हूँ, मैं आगे का प्लान क्या कर सकती हूँ, और जो मैं सीख रही हूँ समझ रही हूँ मैं दूसरों तक भी पहुंचा दूं। अच्छा जी, अब ये हदीस है सही बुखारी की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। ये जो है ना, अल्लाह, ये हु है, ठीक है, दो अम्मा के साथ जैसे हमने हु वो टेबल पूरा किया हुआ, ये लौट रही है जमीर कुरान की तरफ। ठीक है, तुम में से बेहतरीन वो है। अब देखिए, ये जो कुरान मजीद के बारे में 2 चीजें हैं, ठीक है, पहली चीज खुद सीखना, और दूसरी चीज क्या है, दूसरों को सिखाना। और सिखाना क्या है, खूब बता रहा है कि कुरान सिखाना है। ठीक है, और जब ये दोनों काम होंगे तो इस हदीस के मुताबिक हम लोगों में से बेहतरीन बन जाएंगे। ठीक है, जो हदीस के दोनों पहलुओं पर अमल करेगा। अब ये नहीं समझना कि खुद सीख लिया दूसरों को नहीं सिखाया तो हम बेहतर नहीं होंगे, बेहतर हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे जब हम दूसरों को भी सिखाएं। और इसके लिए बाकायदा ऐसे, ये भी नहीं आपने समझना कि जब तक मैं जूम पे जाके क्लास नहीं लूं,
चाहे आप अपने घर में किसी को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, सिखाना जरूरी है। जब हम सिखाते हैं ना तो हमारा अपना भी नॉलेज बढ़ता है। अब बच्चों को कोई भी, जैसे जब बच्चे शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं, आप देखें कि उनकी जो छोटी छोटी किताबें, 3 किताबें होती शुरू, उसमें भी कुछ बाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमने पहले नहीं सुने हुए थे। हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं ना, तो सिखाने के साथ साथ बंदा ज्यादा सीखता है। ठीक है। तो खैरुकुम, 2 टुकड़े करेंगे। खैर अच्छा बेहतर, ये तुम बार बार करते आए, कुम वही सामने वाला जो सीगा। ठीक है। इसके बाद खैर अच्छा बेहतरीन, और खैरुकुम तुम में से बेहतरीन। ठीक है। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन। अच्छा जी, कब्र का पहला सवाल होगा, मन रब्बू का, कौन है तेरा रब? ये वही मन है, यहाँ पर कौन वाला माना आ गया। ठीक है। अब जो है वो है जो, अब यहाँ जो वाला माना, अब वो है कहाँ से आया? ये हमारी तर्जुमे की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि रमा तर्जुमे में थोड़े अल्फाज ज्यादा शामिल किए जाते हैं, ताकि जो तर्जुमा सिर्फ पढ़ रहा है, उसने ऊपर से सारी वो नहीं समझी ग्रामर, लेकिन उसको समझ में आ जाए कि इस आयत मुबारका या हदीस मुबारका का तर्जुमा क्या है। ठीक है। तो ये मन वही है। मन रब्बू का, कौन है तेरा रब? तो हम क्या कहेंगे जब कब्र में ये सवाल होगा? हमें क्या कहना होगा जब पूछा जाएगा मन रब्बू का? हम इसका आंसर कैसे करेंगे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ठीक है। ये याद भी इस तरह से हमने करना है कि ये कब्र के सवाल हैं। ठीक है। तो मन, 2 माना बार बार देख के आए, मन रब्बू का और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ठीक है। तो यहाँ जो वाला माना कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर सवाल हो रहा है। और इसको हु को भी देखे ना तो ये भी उसी तरह से काम करता है। इसके बाद बताया जा रहा ताल्लमा, खुद से सीखना, सीखने में जरा ज्यादा मेहनत होती है ना, तो इसमें देखें एक लफ्ज भी ज्यादा है। ठीक है। इसमें एक ता ज्यादा हो गई, यानी कि सीखने में हमें मेहनत ज्यादा करनी, ताल्लमा। और आपको इंशाल्लाह QC 3 में हम इस तरह के टेबल भी कराएंगे। ताल्लमा, ताल्लमू। ठीक है। ताल्लमता, ताल्लम तो, फिर सो ऑन आगे आगे पूरे जैसे जैसे सीखे होते हैं। और इसी तरह से अल्लामा, अल्लामू, अल्लमता, अल्लम, तो ये पूरे पूरे टेबल करेंगे। अभी आपसे इन टेबल्स के बारे में सवाल नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना सीख लें कि जैसे तदब्बर होता है ना, तदब्बर खुद से हम तदब्बर करते हैं, खुद से गौर व फिक्र करते हैं, इसी तरह से ताल्लमा खुद से सीखना, और अल्लामा सिखाना। और ताल्लमा कुरान मजीद में 2 मरतबा, और अल्लामा जो सिखाना है ये कुरान मजीद में 14 मरतबा है। ठीक है। अल्लामा हु, ये जो आपको एंड में नजर आया ना, अल्लामा प्लस हु, ये इसके हम इस तरह से टुकड़े भी कर लेंगे, सिखाया उसको। अब यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ताल्लमा, पहले ये अपने अंदर ये नूर, ये रोशनी हम भरेंगे, और इसके साथ ही हम बाद में भी नहीं, सीखें और सिखाते जाएं। ठीक है। तो अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, बच्चों को ये हम बता सकते हैं कि ये मैंने आज सीखा। खैरुकुम बता सकते हैं, खैर का माना अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। कुम तुम सब के लिए यूज किया जाता है। मन के 2 माना, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे ना दूसरों को सिखाने की, तो हमें खुद भी ये चीजें याद रह जाएंगी। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, मगर इस वक्त रुए जमीन पर मुख्तलिफ मजामीन की लाखों लोगों की क्लासेस चल रही होंगी। और आजकल तो वैसे भी छुट्टियां हुई हुई हैं, चल रही हैं क्लासेस। मीट पे मेरे अपने दोनों बेटों की क्लासेस चल रही होती हैं, क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह की नज़र में उन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लासेस कौन सी हैं? जो कुरान की क्लासेस है, जहाँ पर समझा जा रहा है कुरान को, जहाँ पढ़ाया जा रहा है कुरान को। तो जहाँ जहाँ, इसीलिए हम बार बार ये भी कहते हैं आपको कि कुरान का फहम, इल्म जहाँ से मिले ले लो। जैसे हम QC 1 कराते हैं, किसी को हम मना नहीं करते कि आप तदब्बर का कोर्स ना करें, आप ये कोर्स ना करें, आप इसके साथ जितना कोर्स, जितना समझ सकते हैं करें, जरूर करें। ठीक है। लेकिन खुदारा कोशिश ये किया करें कि एक कोर्स को कर लें। ठीक है। ये ना हो कि आप एक और कोर्स शुरू करें, फिर ये वाला भी बीच में, वो वाला भी बीच में, और बेजा ग्रुप्स ना ज्वाइन किया करें। हमें एक आदत ये भी है कि हम ग्रुप्स दड़ा दड़ ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर हम टाइम नहीं दे पाते ना। तो अपनी ईज के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये खूबसूरती देखिए कि पहले तालिब इल्म का जिक्र आया। ये इकराम है कुरान को सीखने वालों का,
کہ پہلے سیکھنے والوں کی بات ہے، اسٹوڈنٹس کی بات آ رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اس بات کو بھی ہم نے بہت اچھے سے نوٹ کر لینا ہے کہ جو علم ہے نا، علم جو علم کو چھپائے گا، علم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا کا مال و دولت ہم اگر اپنے پاس رکھیں گے نا، ہم اپنے جیسے کہتے ہیں کہ چھپا چھپا کے رکھیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور علم تو ایسا خزانہ ہے کہ اس کو آپ جتنا خرچ کرتے جائیں گے، جتنا خرچ کرتے جائیں گے، یہ بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ اس کو روک دیں گے تو یہ آپ کے اپنے آپ پاس سے بھی یہ بھک سے اڑ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے نا، تو قرآن اپنے آپ کو اٹھا لیتا ہے، اور ہم پھر قرآن کو ہی اٹھا کے اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ وہ ہماری پہنچ سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی روٹین نہیں ہے، اللہ کرے کہ انشاءاللہ آپ کی روٹین ہو کہ آپ مسلسل پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں، دو پڑھیں، شروع کریں، مسلسل پڑھنا ہے، ٹائم نکالیں۔ آپ قرآن کو پکڑ کے اٹھا کے بیٹھ کے کسی ٹائم میں نہیں کر سکتے، اپنے موبائل میں قرآن کو کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں آپ نشانی لگا لیں کہ آج میں نے دو آیات پڑھی، پھر اگلے دن دو پڑھی، اس کو پھر بڑھاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ روکنا نہیں ہے کام۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے گا، سیکھے گا اور سکھائے گا۔ سیکھنے تک محدود نہیں رہنا نا، تو اسی وقت ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم سکھائیں گے۔ جیسے ہم اب چار لوگ بیٹھے ہیں، آپ نیت کر لیں کسی کو سوچ کے، کہنے کہ اچھا میں اس کو اور اس کو، دو لوگوں کو یہ سکھا دوں، تو انشاءاللہ ایک کو بھی سکھا دیں گے۔ جیسے ہمیں جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک بھی ہو، آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ 100 کو سکھا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ ایک ہے تو میں اس پہ توجہ نہ کروں، محنت نہ کروں، ٹھیک ہے؟ اب نیچے یہ تو لکھا 10 سیکنڈ میں دو نام لکھ لیں، چلیں یہ میں آپ سے نہیں پریکٹس کرواتی، آپ خود سے جب آپ کو لگے کہ اب میں سکھانے کے قابل ہوں، اب میں نے کچھ سمجھ لیا ہے، تو ضرور بھی ضرور دوسروں کو سکھائیے۔ اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے، قرآن پہ غور کرنا سیکھیے انشاءاللہ۔ نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ ہم اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، انشاءاللہ سے ہم نے سیکھا کہ اگر شاء کا پوچھا جائے معنی بھول جائے گا، ان کا پوچھا جائے معنی بھول جائے گا، انشاءاللہ کسی سے پوچھے نا فوراً یاد آ جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے اگر چاہا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ جو دو چیزیں اچانک سے آج کیوں ہمارے ساتھ پاس آ گئی سلائیڈ میں، ان اور انا کا ذکر اچانک سے کہاں آ گیا، ان اللہ مع الصابرین، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر انما الاعمال بالنیات، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ کوئی سسٹر مجھے بتائیں اس کا آپ نے پہلے کس طرح سے ترجمہ کیا ہوتا؟ ہم لوگوں نے نا یہ کہیں نہ کہیں اپنے اسکول سسٹم وغیرہ میں پڑھی ہوتی ہے، یہ والی حدیث، اس کا عمل کا ترجمہ دار کیسے آپ نے سمپل جو اردو ترجمہ کیسے کیا ہوا تھا؟ بے عمل کا شک امال کا دار و مدار نیتوں دار پر و ہے۔ مدار، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ آپ اردو نیچے دیکھیں اور اس کے حساب سے عربی بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کس طرح سے سیکھ رہے ہیں؟ ہم ورڈ ٹو ورڈ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس طرح سے اس اردو کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم دار و مدار کی کیا عربی کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے سیکھ لینا کہ اس کے اندر دار و مدار آیا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انما، سب سے پہلے انما کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، انما کا معنی ہوتا ہے بس، صرف، یا تو والا معنی بھی اس کا کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہیں امال تو، ٹھیک ہے؟ امال تو بس، اس طرح سے بھی کر لیا جاتا ہے، امال صرف۔ اور ایک اور چیز ابھی کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، بھولنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار آپ کو انما نظر آئے گا، جی یہ انا پلس ما ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 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 انما، جب انما آ جائے اس صورت میں ٹکڑے نہیں کریں گے، تب ہم اس کو پورا ایک لفظ بنائیں گے۔ اپنے نا نوٹس میں لکھا کریں جو پورا پورا ایک لفظ ہے، اللہم کے ٹکڑے نہیں کرنے، تبارکا کے ٹکڑے نہیں کرنے، انما کے ٹکڑے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ اور جو جو چیزیں اس میں شامل ہوتی جائیں، پھر وہ ایک جگہ پر آپ کے پاس، آپ نے اپنی ایک لسٹ بنائی ہوگی جو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لفظ ہیں جن کے ٹکڑے نہیں کرنے، انا ماں کے ٹکڑے نہیں کرنے۔ ان کا معنی الگ سے ہے، انا کا معنی الگ سے ہے، لیکن انا ماں
ان ناما کے بارے میں جب ہم اپنے نحو کے پوائنٹ سے سیکھیں گے تو یہ مزید ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیوں ایک اکٹھا کر کے لفظ بنایا گیا، اور کیوں اس کے معنی یہ والے آ گئے کہ بس، صرف بس اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے اس میں اب آگے مزید کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انما الاعمال، عمل سے اعمال، عمل کی جمع ہوتی اعمال، اور بی پلس النیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ اب یہ جو تھا نا اعمال تو بس نیتوں پر ہے، اس سے نا پوری بات سمجھ میں، اردو سمجھنے کے لیے ایک کسی چیز کی ضرورت پڑی کہ اس کو اب ہم کس طرح سے سمجھا دیں، تو اس کا ترجمہ آسان کر لیا گیا کہ بے شک اعمال تو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دار و مدار کی ہمیں سمجھ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ بیس ہو رہی ہے نا، سمجھ لے کہ جیسے اب کوئی بھی عمل ہے، جیسے ہماری امی کہا کرتی تھی کہ نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ جب تک ارادہ کیا لیکن جب تک اس کو کر نہیں لیا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور یہ میں نے ایک دو دن پہلے حدیث میں بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تب تک آپ کی جو گناہ آپ نے سوچا اس کو نہیں لکھتا، لیکن نیکی صرف آپ نے سوچا، نیت کی ہے، صرف نیت کی، کیا نہیں تھا، اس کا بھی اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ تو نیت جو ہے نا، نیت کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی کی تعریف کی لیکن نیت اندر سے آپ کی یہ تھی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو آپ کا اندر والی جو نیت ہے نا وہ کنسیڈر کی جائے گی، منہ سے آپ جو مرضی بولتے جائیں۔ لیکن اگر آپ نے نیک نیت سے کسی کی تعریف کی، نیک نیت سے کسی کو پڑھایا، اور نیت کا تو اتنا زیادہ جیسے اس کے لیے خبردار رہنا چاہیے، شاید میرے خیال سے ابھی آ بھی جائے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں کیسی کیسی وعید بھی آ جاتی ہے۔ اچھا جی، عمل، اعمال، یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ مکسر والی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مکسر جمع ہے، اور آج ہم نے عمل کو بھی سیکھنا ہے، آج ہم نے ذکر کو بھی سیکھنا ہے۔ ابھی ہم نے جو پڑھا تھا لی پلس ذکر، اس کو بھی سیکھ لینا، آج ہم عمل کو بھی سیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے ٹیبل میں کہاں فٹ ہونے ہیں۔ نیت، نیات، ٹھیک ہے؟ نیت ہم اردو میں اس والی تا کے ساتھ نیت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں اس کو گولتا کے ساتھ نیتن، نیاتن، جیسے مسلمتن، مسلماتن، تو یہ وہ کون سی جمع ہے؟ یہ مؤنث کی جمع سالم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نیت سے اب تھوڑا سا ڈرنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ تین لوگوں کا ہوگا، ان میں سے ایک ہوگا شہید، ایسا شہید جس کو یہ ہو کہ میرے بارے میں جب میں شہید ہو جاؤں تو واہ واہ ہو جائے۔ اب یہ کیا تھا؟ اب یہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ یہ لوگوں کو خوش کرنے کی نیت تھی۔ دوسرا، صدقہ خیرات کرنے والا، اور کیسے حکم دیا گیا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کریں تو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو اس کی آنکھوں میں ڈائریکٹ نہ دیکھیں، کہ اس کی وہ جو ایک حیا ہے، ایک شرم ہے، وہ قائم رہے۔ تو ایسا صدقہ جس کی ہم تشہیر ایسے کر دیں کہ لوگ واہ واہ کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں ایسا قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھا رہا ہو کہ میرے بارے میں کہا جائے کہ واہ یہ تو بہت ہی اچھا ٹیچر ہے، اس نے تو کیا امیزنگ طریقے سے پڑھا دیا۔ اب اگر نیت ایسی ہوگی تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو بہترین کرے تاکہ نیتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا مقصود ہو۔ ہم ہر کام کریں، آپ چاہے گھر کا بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، چاہے آپ ایک چھوٹا سا ڈسٹنگ ٹیبل ہی صاف کرتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا برتن بھی دھوتے ہیں، نیت کر لیں کہ میں مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ کام کرنی، اجر و ثواب بھی ہوگا، اور نیت کو جو نیت کرنے کا ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ جو نیتیں ہیں یہ اعمال کو برباد بھی کر سکتی ہیں اور یہ اعمال کو مقبول بھی بنا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے تاکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دنیا کے شاید 90% 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں بھی سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ اب
جب मैंने अभी खुद की उसी वन पढ़ाना नहीं शुरू किया था, एक टीचर के साथ हम हेल्प के लिए उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे काम किया करते थे, तो एक आंटी थी, वो बिल्कुल पंजाबी स्पीकिंग, उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। उनको फिर हम बहुत सारी चीजें ना, ये जैसे स्लाइड्स वगैरह भी बाज़ हम पंजाबी में उनको पढ़ पढ़ के सुनाते थे, बताते थे। और वो क्या करती थी, वो किसी से फिर लिखवाती थी। वो जो अपनी वर्कबुक है वो किसी से लिखवा लेती थी। जब वो गूगल होमवर्क करती थी, पहले उनको वो पंजाबी में ट्रांसलेट करके बताता, अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसमें से ये निकालना है। तो शौक और लगन हो ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वसीले बना देता है। एक थी आंटी, वो उनका था कि वो उनका नज़र का इशू था, तो वो कहती थी कि बेटा अगर आप चाहें तो मुझसे सुन लें। तो उनकी वर्कबुक मैंने सुनी थी। तो ये है कि अगर आप नियत कर लेंगे ना कि मैंने कुरान को सीखना ही सीखना है, तो कोई भी आप किसी भी तरह का उज़र होगा, उसके लिए अल्लाह ताला ऐसा वसीला या सबब बना देगा, आप खुद हैरान होंगे। इसलिए कहते हैं कोशिश करें, नियत करें कि मैंने सीखना है। ठीक है। अच्छा जी, अब इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल की वॉल पर लगा लें, और ये सारे काम हमने किए हैं। ये जब हम अपने मोबाइल को बार बार, मोबाइल सबसे ज्यादा देखा जाता है, जब भी हम सो के ही उठे सबसे पहले टाइम ही देखना, मोबाइल ही देखते हैं। जब मोबाइल की स्क्रीन ऑन होगी, वहां पर ये अल्फाज जगमगाएंगे, तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा कि इनका माना अगर है, इन्ना का माना बेशक है, और इन्ना इन्ना माँ का माना सिर्फ है। ठीक है। और इन्ना माँ के टुकड़े नहीं करने, कोई ब्रेक नहीं मिलेगी ना मुझे ना आपको। हम इंशाल्लाह अपना आइए कुरान समझिए 18B का आगाज करते हैं। और आज इंशाल्लाह हमारा टेबल भी कंप्लीट होगा। आज हमने सीखना है फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़िअलुन। इशारे देखिएगा, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। ठीक है, ये मुक्का बना के मैंने बताया, यानी कि सॉलिड बात होगी। ठीक है। तो फ़अला, जअला, फतहा, नसरा, खलका, ज़करा, अबदा। अब इनके हम देख लेंगे कि किस तरह से हमने मजीद इनकी ग्रामर और टीपीआई सीखनी कैसे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ठीक है। सब आपके साथ मिलकर नहीं करते। आप जाके मिरर के सामने खड़े हो जाएं, और मिरर के सामने खड़े होके मेकअप मुकअप नहीं करने लग जाना, बल्कि इशारे करने हैं। ठीक है। इशारे कौन से करने हैं? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िअल। और ये जो प्रैक्टिस है QC1 की, इतनी काम आएगी कि आप QC7 में भी जाके जब कोई फेल पढ़ेंगे ना, तो आपके हाथ खुद ब खुद इशारे कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे, 2 या 3 सूरतें उसको आप कर लें कि मैंने इस सूरत में आने वाले जितने भी ये जो ज़मायर होंगे, अफ़ाल होंगे, उनके इशारे करने हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी समझ आने लग जाती है कि किसकी बात हो रही है, वाहिद की बात, मुज़क्कर की बात, जमा की बात, मुज़क्कर की बात, या फिर ये सामने वाले की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, ये जमा की बात हो रही है। इसी तरह से हमने मुअन्नस भी थोड़ी थोड़ी सीख लेनी है। ठीक है। थोड़ी सीखेंगे मुअन्नस, आगे चलकर भी हम थोड़ी सीखेंगे, क्योंकि कुरान मजीद में मुअन्नस के अल्फाज थोड़े आए हैं। ठीक है। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं, इसको अच्छी तरह रट लें। ठीक है। ये कि इसमें अब रवानी आ जाए, आप इसको जैसे टैप खोले ना, पानी आता है, इस तरह से ही आपके मुंह में आना चाहिए कि अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। हर एक की दो दो बातें। इस्म किसी शख्स, जगह या चीज का नाम, या किसी की कोई सिफ्त। सिफ्त खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र हो, और जमाने का भी पता चले, करना या होना इस फिंगर पे कर लें और इस पे कर लें, जिसमें जमाने का भी पता चले। ठीक है। जब हमने शुरू किया था ये वाली स्लाइड से, तो हमें फतह, उसने खोला, या मालून, या मालूना, वो सब अमल करते हैं। तब हमें नहीं पता था कि यहाँ पर माजी और मुदारे की बात हो रही है, लेकिन अभी हमें समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर्फ क्या है? कुरान मजीद में इस्मों और फेलों के अलावा बाकी सारे के सारे हुरूफ हैं। ठीक है। जो इस्मों और फेलों की कैटेगरी में ना हो, उन्हें हम हुरूफ कहा करेंगे। फेल माजी जो हो गया, जिसमें किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं। कल का दिन गुजर गया, आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते उसमें, लेकिन आज का दिन जो गुजर रहा है, या जो कल का आने वाला दिन, उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। फेल अम्र क्या है? ये असल में मुदारे से ही डिवेलप किया जाता है ना, उसी से डिराइव होता है ये इसका लफ्ज भी। तो अब क्या है, ये इसमें हुक्म देना या गुजारिश करना।
अच्छा जी, अब तक हमने ये इतना टेबल सीखा है, ठीक है, अभी कुछ कमी कमी है। अभी ये पूरा एक जब मुकम्मल टेबल आपके सामने आएगा तो आपको इंशाल्लाह ये याद होना शुरू हो जाएगा इस तरह से टेबल। यहाँ तक हमने क्या किया है, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु, और इसके बाद इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम ये जो तब्दीलियां हमने की थी अफ़ाल की, इसमें हम समझेंगे कि ये जो तीन तरह के शुरू के हम चाबियां जिनको कहते हैं, ठीक है, ये शुरू की जो तीन चाबियां हैं, इन्हें हम कहा करेंगे कि ये अफ़आल हैं। ठीक है। हम कहेंगे फतह फेल माजी, यफ्ताहु फेल मुदारे, इफ्ताह फेल अमर। इसी तरह से आगे आप बाकी भी। अच्छा, अब ये ना इसको इस तरह से भी लेना है कि ये चार दरवाजे हैं, ठीक है, ये चार आप समझ लें, आपने सांचे बनाए हैं केक बनाने के लिए। तो जो आप फा का सांचा लेंगे, जिस जो भी बैटर डाल लें आप, उसको जब फतह के सांचे में डालेंगे ना तो वो फिर यफ्ताहू ही बनेगा, वो यफ्तुहू नहीं बन सकता। अगर नौसरा में डाला तो वो यंसुरू ही बनना है, दोबारा बस ही यदरिबू ही बनेगा। और सामिया का क्या है कि सामिया वाला पहले ही माजी में ही बदल गया, ठीक है। इसमें ये होता है कि फतह और सामिया, इनका मुदारे और अमर एक जैसा बनता है, लेकिन ये फर्क कहाँ पे आ जाता है, ये माजी में ही हमें पता चल जाता है। अच्छा जी, आज हम सीख रहे हैं फाइलुन। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि इसमें तो तनवीन नजर आ गई, अब हम क्या इसको कहेंगे कि ये फेल है या इसम है? जी कोई बता सकता है मुझे, क्या ये इसमें है। इसम की निशानी है ना, इसम की निशानी हमें नजर आ गई है। हमें अल जी। नजर आ जाए या तनवीन नजर आ जाए, आंखें बंद करके आप उसको कहें कि ये इसम है। अब हमें पता चला कि ये जो तीन चाबियां थी, फतह, यफ्ताहु, इफ्ताह, ये तीन फेल हैं। इसके आगे हम जब कहें कहा करेंगे फाइलुन, मफओलुन, फिअलुन, ये हमारे अस्मा होंगे। इस तरह से हम तीन चाबियां अफआल की और तीन चाबियां अस्मा की अपने पूरे मुकम्मल टेबल में पढ़ेंगे। अच्छा, चाबी लगाई खजाना खुला, अभी हम माजी और मुदारे के खजानों से वाकिफ हो रहे हैं। इसका खजाना क्या हो सकता है? हम देख रहे हैं कि फाइलुन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जमाना तो कोई नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि ये अल फाइलु बन सकता है, इसकी मोन्नस बन सकती है अल फाइला, ठीक है, फाइला तुन भी बन सकती है। अच्छा जी, फिर मजीद क्या हो सकता है? फाइलूना हो सकता है, फाइलीना हो सकता है, ठीक है, ये फाइलात हो सकता है, ठीक है, और इनको फिर अल भी लग सकता है। तो ये इस तरह से पूरा खजाना खुलता जाता है, फिर इसमें ड्यूल वाले सिगे भी आ सकते हैं। तो अभी हम इतनी डिटेल में, अस्मा की डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, लेकिन हम ये याद रखेंगे कि तीन जो है हमारे फेल के सीखे हैं, उनको हम अफ़ाल कहा करेंगे, और तीन हम कहा करेंगे कि तीन अस्मा हैं। तो इशारा ज़रा बहुत गौर से देखें, बार बार देखें, फ़ाइलुन, और जब इसकी हम जमा बनाएंगे ना तो इसको ड्रैग कर लेंगे, फ़ाइलूना, फ़ाइलीना, दो तरह की जमा बन सकती है, वाव नून जानून वाली। इसके बाद है मफऊलुन, जिस पे असर पड़ रहा है, ठीक है। आप समझ लें जैसे कोई किसी को पैसे दे रहा है ना, तो ये दे रहा है और ये जो ले रहा है जिस पे असर पड़ रहा है, तो ऊपर वाला हाथ देने वाला, नीचे वाला हाथ लेने वाला। और हम क्या कहते हैं, दुआ क्या करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऊपर वाले हाथ हाथ वालों में से बनाए, नीचे वालों में से ना बनाए, कि अल्लाह ताला हमारी रोजी को इतना इंशाल्लाह बाबरकत बनाए कि इंशाल्लाह हम देने वालों में हो। तो फाइलुन, मफऊलुन, फिअलुन, अगर तनवीन साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी कि ये फेल है या इसम है, ठीक है। ये आपके सामने पूरा टेबल आ गया। फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। और अभी ये एक जो चीज़ है ना, अभी थोड़ी सी एक छोटी सी कमी है इसमें, आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, जबकि इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ यहाँ अभी ऐड होनी बाकी है,
क्योंकि हम 21 सीखे बार बार कहते हैं। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो फिर ही ये 21 का आएगा ना पूरा। तो अब हम क्या किया करेंगे, अब हम इसमें एक मुअन्नस शामिल कर लेंगे। हो सकता है आज के लेसन में कर लें, हो सकता है कल शामिल करें। तो क्या हो जाएगा, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, साथ हम जोड़ लेंगे फ़अलत। जैसे औरत एक ता साकिन वाली आती है ना, तो फ़अला के साथ ही, इस फ़अला के साथ ही हम एक औरत वाली ता को, यानी कि मजजूम ता को, जिसके ऊपर सुकून होगा, उसे शामिल कर लेंगे। ये बन जाएगा फ़अलत। यानी कि माजी के पहले सीखे के साथ हम एक ता लगाएंगे, तो बन जाएगा फ़अलत। अब देखें, फतहा फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना और फतहत। नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना नसरत। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन जाएगा। और मुदारे में कोई अलग से लफ्ज नहीं बनेगा, बल्कि तफ़अलु को ही हम क्या करेंगे, हिया तफ़अलु। ठीक है, हम कहेंगे यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना हिया तफ़अलु। ठीक है, फिर साथ साथ और अगले जो, ये भी साथ हमारे पूरे हो जाएंगे सीखे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले टेबल किया था अंता अना, उसको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब हम कह रहे हैं हल अंता फाइलुन। आप जवाब कैसे देंगे, आप जरा जवाब दें, मैं इशारा करती हूँ। हल अंता फाइलुन, क्या आप करने वाले हैं, आप क्या जवाब देंगे। नअम अना फाइलुन। नाम अना फाइलुन, जी हाँ मैं करने वाला हूँ। और इस बात पे भी गौर रखना है, ये जो इशारे में कर रही हूँ ना, अपने दाएं हाथ से कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये मुजक्कर की बात हो रही है। इसके बाद जब हमने अंतुम कहना है, तो हमने फाइलुन की भी जमा लेके आनी है। ठीक है, हल अंतुम फाइलूना, आप क्या कहेंगे जवाब में। नअम नहनु फाइलून। नाम नहनु फाइलुना, जी हाँ हम करने वाले हैं, ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, जिस तरह से हमने इसको देखा फाइलुन। अब मैं चले, आपके सामने कोई और टेबल नहीं है, यहीं पे आपसे रुक के पूछूं कि नसरा यंसुरु, उनसुर के साथ हम क्या बना लेंगे। फाइलुन के वजन पर, फातिहुन के वजन पर क्या बन जाएगा, नाम भी रखते हैं, थोड़ी सी कोशिश करें। चले यहाँ पर मैं आपकी मदद करती हूँ, अगले का आप कोशिश करेंगे। हम कहेंगे नासिरुन। ठीक है, और इसी तरह से दौराबा यद्रिबु इद्रिब, अब क्या कहेंगे। यदरिबु। नहीं, हम कहते हैं यदरिब। फातिहुन दौरिबुन। दरिब। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा जब हम टेबल के साथ साथ भी देखे जाएंगे ना, तब हमें ज्यादा समझ आती जाएगी। फातिहुन मफतूहुन फतहुन। ठीक है, फातिहुन मफतूहुन फतहुन। ये आपके सामने पूरा टेबल भी आ गया। एक सिस्टर पढ़ लें इसको। जी, लिखा हुआ बेशक तर्जमे के बगैर पढ़ लें। फतह फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना। यफ्तहु अच्छा, मेरा मुअन्नस यफ्तहूना। के लिए हाथ उठ जाता है। ठीक है। यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना नफ्तहु। इफ्तह इफ्तहु ला तफ्तह ला तफ्तहु। फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। यहाँ एक और बात क्लियर क्लियर समझ लें। फातिहूना फातिहीना, मफ्तूहूना मफ्तूहीना हो सकता है, लेकिन मस्तर जो है ना, इस ये मस्तर, मस्तर किसको कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं ना, काम का जो नाम होता है, इसका कोई एक वजन नहीं आपने ढूंढना कि अगर मैंने फिअलुन कहा था तो ये फितहुन होना चाहिए, नहीं, इसके वजन भी अलग हो सकते हैं, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मसादिर ज्यादा भी हो सकते हैं। हल अंता फातिहुन, क्या आप खोलने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे। नाम अना फातिहुन। नाम अना फातिहुन, और इसी से निकला है फातिहुन की मुअन्नस हमने बनाई फातिहतुन। और ये फातिहा क्या है,
कुरान को खोलने वाली है। ठीक है। तो ये क्या था? ये हम फिर जब हम मुन्नस का फिर हम इशारा वो भी ऐसे ही करेंगे, फातिहतुन। ठीक है। फातिहतुन, जैसे हम कहते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन। तो जो हम मुस्लिमुन है या मुस्लिमुन काफिरुन, ये जितने भी इशारे, अब हमें इसम फाइल का इस्मुल फाइल कहना है इसको। ठीक है। इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और फिर मस्तर, उसको इस्मुल मस्तर नहीं कहना। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खुली हुई है? तो आप जवाब में क्या बताएंगे? नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, जाअला का टेबल देखा, जाअला, यजअलु, इजअल, फिर आगे तीन सीगे अस्मा के, जाइलुन, मजऊलुन, जाअलुन। ठीक है। अब यहां पर भी हमने इसको फिअलुन की तरह नहीं बनाना। ये आ गया आपका नसर, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नासिर भी नाम रखते हैं, मंसूर भी नाम रखते हैं। नसर इजा जा नसरुल्लाही, मैंने आपको कहा था ना कि नसर का लफ्ज हम समझ लेंगे कि कहाँ से आया, टेबल में से। तो टेबल में से ये मस्दर है जो कि इजा जा नसरुल्लाही वल फत में आया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा टेबल भी आ गया। इसके बाद है खालिकुन, खला का उसने पैदा किया, यखलकू वो पैदा करता है, यखलुकू वो पैदा करता है या करेगा। उखलुक पैदा कर, तो हमने कहा था इसमें हम वो वाला नहीं बनाएंगे डायलॉग कि कोई पैदा नहीं कर सकता ना कोई किसी भी चीज को। तो इसका जो इस्मुल फाइल आएगा खालिकुन, मखलूकुन और खलकुन। ठीक है। खालिक कौन है हमारा? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया है? अपनी मखलूक। मखलूक। तो ये जो हम हम जो पैदा हुए हुए हैं, तो ये क्या है? ये जो काम हुआ हुआ है ये खल्क हुआ हुआ है। ठीक है। खल्क, पैदा करना। अच्छा जी, आज के लेसन में हमने पढ़ा था ले जिक्र, तो जिक्र कहाँ से आया था? ये हमारे जिक्रुन मस्दर से आया था। ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। टेबल करने का क्या फायदा होता है? टेबल करने से हमें ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो जाकिर, याद करने वाला। ठीक है। जाकिर, जिसने किसी काम को याद किया, समझा। जाकिरुन और मजकूरुन, जिसको याद किया गया हो। ये जो अरबी के होते हैं ना, खास तौर पर ग्रामर के हवाले से, तो इसमें अक्सर सवालों में इसे लिखा भी था कि ये मजकूर हैं, यानी कि लिखे गए हैं, ये यहाँ पर पहले से बताए गए हैं। तो मजकूर उर्दू में भी यूज होता है, जिसको याद किया गया। समझ लें आप, जाकिर हैं यानी कि कुरान को याद करने वाले हैं। और मजकूर क्या है? कुरान मजीद। और जिक्र, इसको जो हम जाकिर मजकूर कर रहा है वो जिक्र है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है आबिदुन, इबादत करने वाला। माबूदुन, जिसकी इबादत की जाए। और इबादतुन, देखें अब यहाँ पर बिल्कुल बदल गया, इबादतुन आ गया। तो मस्तर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और इसका मस्तर अब्दुन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये मस्तर ज्यादा भी हो सकते हैं और इनका कोई एक वजन नहीं आपने ढूंढना, इनके अलग अलग वजन भी हो सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें ना, खालिदुन, पूछे पूरा पीछे इसके टेबल आ जाएगा, खालदा, यखलुदु, उखलुद, खालिदुन, डैश। अच्छा डैश है ये अभी आपको समझने में थोड़ा सा हो जाएगा कंफ्यूजन, तो डैश वाला हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाएगा खुलदुन, यानी कि हमेशा रहने वाला। खालिदुन, हमेशा रहने वाला। शाहिदुन, गवाही देने वाला। आबिदुन, इबादत करने वाला। अब जितने भी ऐसे उर्दू के नाम है, उस हामिदुन, हमद करने वाला, हमद बयान करने वाला, इसको हम इस तरह से समझ लेंगे। अच्छा जी, दावत देने का हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? क्या आप किसी को खाने की दावत पर मुर्दा या बेजार सी आवाज में बुलाएं तो वो आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। अगर आप जैसे फोन करके किसी को कहते हैं अच्छा चलें देख लें आ सकते हैं तो आ जाएं। लेकिन यही अगर आप कहें कि आपको आना ही आना है, मुझे शिद्दत से आपका इंतजार है, तो जिसको आप दावत इस तरह से देंगे वो जरूर आएगा। जब आपने मुर्दा सी आवाज निकाल के बेजार बेजार सी तबीयत में बुलाया तो वो शख्स भूखा रहना पसंद कर लेगा, इस बेजार दावत को कबूल नहीं करेगा। तो अपने आप को यानी कि अपने जहन को किस तरह हम दावत दें प्रैक्टिस करने की, ग्रामर और याद करने की? थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, बल्कि जोश के साथ किया करें। और ये जो ग्रामर जिस तरह से हम ये आइए कुरान समझिए में सीखते हैं ना, तो ये खेल खेल में हम सीख लेते हैं।
कि हम इसी तरह से एक लफ्ज लेके मादा लेके इशारे करते जाएंगे और हमें ये बहुत अच्छे से जहन नशीन होती जाएगी। ठीक है। तो क्या करना है, शौक और मोहब्बत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने हमें कुरान को सीखने का मौका दिया। अब ये छोटे छोटे से सवाल हैं, आप मुझे इसका बता दीजिए। वलक़द, इसका तर्जुमा क्या होगा? वलक़द, वलक़द, तीन लफ्ज हैं, ठीक है, तर्जुमा बताइएगा। और अलबत्ता। और Exactly. अलबत्ता, तहकीक, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक्सलेंट जीनियस क्लास। अच्छा जी, वअल्लमहू, वअल्लमहू, और सीखा उससे या आगे सिखाता उसको, सिखाना। और सिखाई उसको। ठीक है। उसको। हाँ, उसको, उसको किसको? कुरान को सिखाई। ठीक है। अच्छा जी, बिन नियात, नियतों पर है, नियतों को है और नियतों से है। क्या माना इसका? अच्छा अच्छा सा लग रहा है। नियतों पर है। नियतों पर है। अच्छा जी, फाइल का क्या मतलब हुआ? जिस पर काम का असर पड़ा, या काम करने वाला, या फिर काम का नाम है ये? काम करने वाला। काम करने करने वाला। वाला जी। और माबूद, ये मैं इशारा करती हूँ, माबूद, इसका क्या माना होगा? जिसकी, जिसने इबादत जी। की, या जिसकी की इबादत की गई। गई? की इबादत की है। जिसकी इबादत की जिसकी गई। इबादत की। अच्छा जी, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं दरवाजा खोला हूँ, फिर हम इंशाल्लाह क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने 40,000 से ऊपर तक के हमने अल्फाज सीख लिए। अच्छा जी, कितने अल्फाज हैं? 232 हैं टोटल। सिर्फ यानी कि हमारे 10 अल्फाज रह गए हैं, वो जो हमने इंशाल्लाह कल की क्लास में सीख लेने हैं। 20th लेसन में हम क्या करेंगे? जो हमने सीखा है उसे हम थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करते जाएंगे। दो क्लासेस रह गई हैं, मिस नहीं करनी, ठीक है। जितना हम रमज़ान में सीख लें, इसकी तो क्या ही बात होगी, इसका अजर सवाब भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह कोर्स भी पूरा रिवाइज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और फूल आपका हुआ। आप चोजन पीपल हैं, अल्लाह ताला ने खुद आपका इंतखाब किया है कि आइए समझिए। कहते हैं कि तौहन, ठीक है, तौअन या करहन, हमें अल्लाह ताला ही की तरफ आना है। ठीक है। हम चाहे एताअत करते हुए आए, ठीक है, चाहे हम अल्लाह ताला की एताअत करते हुए आए, और करहन कहते हैं घसीट घसीट कर जिसे लाया जाए। मजबूरी से। ठीक है। यानी कि खींच खींच कर। तो कहते हैं कि अगर तौहन नहीं आओगे ना, तो करहन लाया जाएगा। तो ये तो अल्लाह ताला का हम पर इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमारे सामने किसी भी तरह से, किसी के भी जरिए आपके पास ये कोर्स पहुंचा। मुझ पर कैसे पहुंचा था? एक फैमिली का कोई ग्रुप था, उसमें एक फ्लायर आया था, तो वहां से ये मेरा सिलसिला शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इस सिलसिले को जारी उसारी रखा। तो आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, वरना वो दिन आने ही वाला है जब हमें घसीट घसीट कर लाया जाएगा। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी पर कोई मुश्किल आ जाती, कोई आजमाइश आ जाती, फिर हम किसे पुकारते हैं? हम अल्लाह ताला की तरफ ही लौटते हैं कि बेशक हमें अल्लाह ताला की ही तरफ लौटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ताला ही की तरफ हमें लौटना है। तो क्यों ना, जब अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता फरमाया है, हमें दीन सीखने की तरफ लगाया है, तो हम ज़रूर बिल ज़रूर सीखें, और QC 1 तक भी महदूद ना रहें। आपको कहीं तफसीर का कोर्स मिलता है, कोई तजवीद का कोर्स मिलता है, तदब्बर का कोर्स मिलता है, तो ज़रूर बिल ज़रूर सीखें। जो भी कुरान का इल्म दे रहा है वो आपको कुछ दे के ही उठेगा।
اور اتنا سیکھیں کہ انشاءاللہ سکھانے کے بھی قابل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس کلاس کو سیکھنے اور سکھانے میں ہماری مدد فرمائے۔ ٹیچر بننا ہے، ٹیچر ضرور بنیے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تو پڑھاتے ہوئے میں سمجھ آئی تھی، یعنی کہ جب آپ پھیلانا شروع کرتے ہیں نا علم کو، تو آپ کا اپنا جو خزانہ ہے علم کا وہ بھرتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی سسٹر تجوید سیکھنا چاہتی ہوں تو ہماری کلاس ہوا کرتی ہے ہر وینسڈے۔ ابھی تو ہم نے آف کر دیا رمضان کی وجہ سے، کوئی یہ جب سے طاق راتیں شروع ہوئی نا تو ذرا یہ والی کلاس ہم نے کی ہوئی ہے، تھوڑی پوز کر دی ہے، ورنہ ہم ہر وینسڈے کو کلاس کرتے ہیں تجوید کی، جس میں ہم اماں پارا پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم قاعدہ نورانیہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، وہ کلاس بھی ٹائمنگز فری کیا ہے ہے جی۔ یہ ہم تجوید کی یہ ہم کلاس کی کرواتے ہوتے ٹائمنگ؟ ہیں، ہم 10 بجے کراتے ہیں یہ والی کلاس، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کرنا چاہیں گی تو ضرور، اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کو اینالائز کرنا سکھائیں گے، صرف ہم نے وہ سوکھی سوکھی تجوید گرامر کے حساب سے نہیں پڑھاتے، نہیں، بلکہ اب ہم ماشاءاللہ سے جو اسٹوڈنٹ اب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ایک آیت کو پورا پورا بتا بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر کتنی لمبی مدود ہے، یہاں پر غنہ ہے، اخفا ہے، تو آسان آسان لفظوں میں ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو وہ کلاس بھی بالکل فری آف کاسٹ ہے، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ آنا چاہیں تو ضرور آپ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، مع السلامہ، الی اللقاء، انشاءاللہ اب میری آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات سیٹرڈے کو، کل انشاءاللہ حفظہ پڑھائیں گی آپ کو، تو اس کے بعد ہم یہ سلسلے کو ایسے ہی بنا لیں گے، ایک کلاس حفظہ لے لیا کرے گی، ایک میں ہم انشاءاللہ آپ کو ڈے اور ٹائم بتا دیں گے کہ جب اب رمضان کے بعد ہم یہ کورس کب کریں گے، تو یہ 2 کلاسز ہیں، مس نہیں کرنی انشاءاللہ، اس میں بھی آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ سب وبرکاتہ۔ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً بالخصوص مسلمان جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔